نہیں دیے. اب میں درخواست کروں گا حامد میر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حامد میر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ناصر زیدی صاحب، افضل بٹ صاحب، شکیل انجم صاحب اور عزیز ساتھیوں، آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے بھی یہیں پر 28 مئی کے دن ہم اکٹھے ہوئے تھے، اور اس دن مسئلہ کیا تھا کہ ہمارے ایک ساتھی اسد پور پر حملہ کیا گیا تھا، اور اس کو انصاف دینے کی بجائے حکومت کے ایک وزیر صاحب یہ الزام لگا رہے تھے کہ جناب یہ جو صحافی ہیں نا یہ ڈرامہ کرتے ہیں اور اسٹیج ڈرامہ کرتے ہیں تاکہ ان کو بیرون ملک اسائلم مل سکے، اور یہ بھی کہا گیا جی کہ کچھ ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کوئی لڑکی کا بھائی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو یہیں پر یہ اسد طور صاحب بھی تھے. اسد طور صاحب نے کہا جی کہ اگر کوئی لڑکی کا بھائی ہے تو اس کو سامنے لے آئیں، گرفتار کر لیں. میں نے بھی اس دن تقریر میں یہی کہا کہ آپ پہلے مارتے ہیں، پہلے ہمیں وکٹم بناتے ہیں، پھر وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں. تو بھائی جان اب 2 مہینے گزر گئے ہیں. اسد طور کے واقعے کو 2 مہینے سے اوپر ہو چکا ہے. نہ تو لڑکی کا کوئی بھائی سامنے آیا ہے، نہ کو ملزم پکڑا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسد طور کے گھر میں گھس کر اس کو پھینٹی لگانے والے آپ ہی تھے. یہ میں نے خاص طور پہ اس موبائل کی طرف اشارہ کیا ہے، اس موبائل کی طرف، تاکہ پتہ لگ جائے کہ جو سن رہا ہے میں اس کو کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا جی کل شام تک بندے پکڑے جائیں گے، پھر پرسوں شام ہو گئی، پھر 1 مہینہ گزرا، پھر 2 مہینے گزر گئے. بھائی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آپ نے جو مہارت حاصل کی ہے نا دنیا میں، پوری دنیا میں آپ کا نام ہے، جھوٹ بولنے پہ آپ کا نام ہے. آپ جھوٹے ہیں، جھوٹے. کیونکہ لاہور میں حافظ سعید کے گھر کے باہر بم دھماکہ ہو، وہ ملزم تو پکڑے جاتے ہیں 48 گھنٹے میں. اسد طور کے جو گھر میں گھسے ان کا پتہ نہیں چلا، حالانکہ ان کی CCTV فوٹیج تھی. ابصار عالم کو جس نے گولی ماری اس کی CCTV فوٹیج تھی، پتہ نہیں چلا. مطیع اللہ جان کو جنہوں نے اٹھایا CCTV فوٹیج تھی، آج تک نہیں پتہ چلا. تو جیسا کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ حامد میر پر پابندی کس نے لگائی ہے، گن پوائنٹ پر، ساری دنیا کو پتہ ہے. نام لینے کی تو ضرورت ہی نہیں، اب ہمیں تکلیف ہی نہیں کرنی پڑتی نام لینے کی. تو اسی طرح ساری دنیا کو پتہ ہے اسد طور کے گھر میں کون کس کے کہنے پہ داخل ہوا تھا، ابصار عالم کو گولی کس نے مروائی، مطیع اللہ جان کو کس نے اٹھایا. ابصار عالم کو گولی انہی لوگوں نے مروائی ہے جنہوں نے صحافیوں کے سامنے بیٹھ کر کہا تھا کہ اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں. بھائی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز تھیں تو ثبوت لے کے آؤ نا سامنے. ثبوت تو ہے نہیں آپ کے پاس کسی چیز کا. ہاں FIR آپ بنا دیتے ہیں، الزام آپ لگا دیتے ہیں، وکٹم بلیمنگ کے آپ بادشاہ ہیں. تو اس وقت پاکستان میں جمہوریت ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے، پاکستان میں آئین ہے بھی ہے اور نہیں بھی ہے. کاش کہ 2 مہینے پہلے جب ہم نے یہاں پر مظاہرہ کیا تھا تو اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو سمجھ آیا تھی، لیکن آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. وہ 28 مئی کا دن تھا، اس کے بعد جون کا مہینہ آیا، 8 صحافیوں پر حملے ہوئے اور ان کو تھریٹ کیا گیا، 8 صحافی. پھر جولائی کا مہینہ آیا، 7 صحافیوں پر حملے ہوئے اور ان کو دھمکیاں دی گئی. جن صحافیوں کو دھمکیاں دی گئی میں ان میں سے کچھ کے نام لیتا ہوں. ایک تو تھے ندیم ملک صاحب، سما TV پر انہوں نے پوری دنیا کو بتایا کہ FIA کے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ نے مجھے سمن کیا، اور وہ نہیں گئے ان کے سمن کرنے کے باوجود. اس کے بعد آن لائن نیوز ایجنسی کے محسن بیگ صاحب ہیں، ان کو تھریٹ کیا گیا. انہوں نے سب کو بتا دیا مجھے تھریٹ کس نے کیا. اور پھر آپ لوگوں کو نوکریوں سے بھی نکلواتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ہے، یہ کیا نام ہے بھی آپ کا؟ ارشاد قریشی. کہاں کام کرتے تھے آپ؟ میں جیو نیوز میں کام کرتا تھا. آپ کو نوکری سے کس نے نکلوایا ہے؟ شیخ رشید کے لو جی، شیخ رشید جو ہے وہ فون کرتا ہے معذرت کے اور کسی کو کہ بھئی وہ تمہارا جو رپورٹر ہے اس کا نام ہے ارشاد قریشی، اس کو مجھ سے معذرت کرے. رپورٹر کہتا ہے میں نے معذرت نہیں کرنی،
शेख रशीद कहता है नहीं नहीं मुझे माजरत चाहिए। रिपोर्टर कहता है नहीं जी मैंने सवाल करना था, मैंने सवाल कर दिया, मैं माजरत तो नहीं कर सकता। शेख रशीद कहता है नहीं नहीं मैंने माजरत चाहिए, मुझे माजरत करवा के दो। वो चैनल ने पूरा जोर लगा दिया, चैनल ने पूरा जोर लगा दिया। रिपोर्टर है बदतमीज, बदतहजीब, नाहंजार, गुस्ताख रशाद कुरैशी, उसने इनकार कर दिया क्योंकि नासिर जैदी साहब का बरखुरदार है, इनका फॉलोअर है, तो नासिर जैदी साहब का जो भी फॉलोअर होगा उसके साथ यही होगा जो मेरे साथ हो रहा है, जो उसके साथ, वो उसको भी नौकरी से निकलवा दिया शेख रशीद ने। तो वैसे हर मामले में शेख रशीद नहीं है, आप ये ना समझें कि सारे मामला में शेख रशीद नहीं है। हर मामले में वही हैं जिनका के नाम हम नहीं लेते लेकिन दुनिया को पता है। शेख रशीद जो है उसका तो नाम ले लिया ना लेकिन जो असद तूर के घर में घुसे, वो शेख रशीद ने कहा पता चल गया है अनकरीब मुलजिम पकड़े जाएंगे, नहीं पकड़ेंगे। इसका मतलब है मुलजमान शेख रशीद से ज़्यादा ताकतवर थे। इसी तरह अबसार आलम पर जिन्होंने गोली चलाई वो भी नहीं पकड़े गए, मुलजमान शेख रशीद से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसी तरह जो मतीला जान के साथ हुआ। तो स्टोरी इस वक्त जो पाकिस्तान की है वो सारी दुनिया के सामने है, और अगस्त का महीना है, 14 अगस्त करीब आ रहा है, टीवी चैनल्स खोले वहाँ पे कौमी तराने बज रहे हैं, लेकिन बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो आज़ादी सहाफ़त के सबसे बड़े चैम्पियन थे, सबसे बड़े सपोर्टर थे, जो जब सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगती थी तो कायद आज़म उनके वकील के तौर पे अदालतों में पेश होते थे। आज उस कायद आज़म के पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लग रही हैं, उनको नौकरियों से निकलवाया जा रहा है, और दुनिया को कहा जा रहा है जी कि पाकिस्तान जो है उसमें जो सहाफ़त है वो जनाब सहाफ़ी जो हैं वो ड्रामा करते हैं, उन्होंने इमिग्रेशन लेनी होती है, उन्होंने बाहर जाना होता है, असाइलम लेनी होती है। तो ये असद तूर भी यहीं पे खड़ा है और मैं भी यहीं खड़ा हूँ, तो हम में से तो कोई बाहर नहीं जाने वाला। बाहर असल में एक्चुअली एंड में आपने जाना है, ठीक है। तो जब आप जाएंगे तो हम आप पर आवाज़ें नहीं लगाएंगे, क्योंकि जाना तो है आपने। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ गया ना, तो आपको भी तो जाना है। वक्त सदा कभी एक सा नहीं रहता, और याद रखो कि ना इक़्तिदार हमेशा रहता है और ना ताकत हमेशा रहती है। एक ना एक दिन वो कपड़े उतर जाते हैं जिनकी वजह से आपके पास ताकत है। मैंने उन कपड़ों का नाम नहीं लिया, समझ आ गई है ना? थैंक यू वेरी मच। वाह जी, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया अहमद मीर साहब। अब मैं दरख्वास्त करूंगा हाई कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब एहतशाम कियानी साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तारिक मिर्ज़ा साहब। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, हामिद मीर साहब मौजूद हैं, भट्ट साहब मौजूद हैं, नासिर जैदी साहब की मौजूदगी में और हमारे तमाम सीनियर्स की मौजूदगी में मुझे बात करने का मौका दिया गया है। मैं इन सब की मौजूदगी में, चूँकि मीर साहब भी बात कर चुके हैं, तो मुख्तसर 2-4 बातें कहूँगा कि सहाफ़ियों के लिए बड़ा मुश्किल कर दिया गया है कि वो अपना गुज़र बसर भी कर सकें। इससे पहले लेबल्स तो बहुत लगा दिए जाते थे कि लिफाफे लेते हैं और पता नहीं किस तरह से ये मालदार बन जाते हैं, लेकिन ये जो फील्ड में फ़िज़िकली काम करने वाले सहाफ़ी हैं, ये उनको पता है कि वो अपना घर का ख़र्च कैसे चलाते हैं और किस तरह से अपने अखराजात पूरे करते हैं। ये तमाम जो प्रोपेगेंडे हैं इन्होंने एक दिन ख़त्म हो जाना है, और जो सहाफ़ियों की जो सच की आवाज़ है उसने बाकी रह जाना है। मैं यही बताऊंगा कि सहाफ़ी जो हैं वो फील्ड में काम करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, उसी से गुज़र बसर चलता है। ये तमाम जो आपके प्रोपेगेंडे हैं और जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं सहाफ़ियों को कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए, वो टूल्स जो हैं उनके ख़िलाफ़ ये इस तरह के एहतजाज चलते रहेंगे। और ये एहतजाज इसीलिए हैं कि आपको समझ आ जाए कि सहाफ़ी जो हैं उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से और पाबंदियाँ लगाकर, चैनलों से निकलवा कर आप अपने जो अज़ाइम हैं उनको पूरा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया कियानी साहब। इंशाअल्लाह ताला हमारे दोस्तों को उठाया गया, तशद्दुद किए गए, हमने एहतजाज जारी रखे। इंशाअल्लाह हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब जनाब अनवर रज़ा साहब से कि वो आएँ अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब अनवर रज़ा साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी जनरल PFU जे नासिर जैदी साहब, अफजल भट्ट साहब, हामिद मीर साहब, आमिर सजाद सैयद साहब और बाकी तमाम साथियों का शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये कोई नई बात नहीं है, माजी की हुकूमतों में भी हमने देखा पुलिस, FIA, NAB इस तरह की कार्रवाइयों के ज़रिए, इन लोगों के ज़रिए जर्नलिस्टों को हरास किया जाता रहा। लेकिन इस बेशरम, बेहया
और बददियानत हुकूमत में जर्नलिस्टों का बिल्कुल नातका बंद किया जा रहा है। ना सिर्फ उन्हें माशी तौर पर कत्ल किया जा रहा है, बल्कि अब तो FIA, नैब और पुलिस के ज़रिए इनको हरास किया जा रहा है। और देखा आपने ऐसे वाक़यात भी होते हैं, असद तूर यहाँ पर मौजूद हैं, कि आप पर तशद्दुद की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इस तरह से पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है, क्या ये हुकूमत इंटरनेशनल सतह पर उजागर कर रही है? लोग बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं और पाकिस्तान को बदनाम तरीन ख़तरनाक तरीन मुल्क करार दिया जाता है सहाफ़ियों के हवाले से। तो ये हुकूमत के सोचने की बात है। हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम है आइनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करना। आईन पाकिस्तान हमें ये हक़ देता है कि हम अपने हकूक़ के लिए, लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें, एहतजाज करें। हम एहतजाज करते रहेंगे और हुकूमत ये समझती है कि शायद इनकी आवाज़ दबा ली जाएगी, तो ऐसा मुमकिन नहीं। माजी की हुकूमतों में भी बड़े आए, हमने आमिर भी देखे और जमहूरियत के लिबादे में आमिर लोगों हुक्मरानों को भी देखा। हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी, क्योंकि हम हक़ और सच की आवाज़ बात करते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान शफकत और आमिर मीर साहब और इमरान शफकत साहब, जिस तरह FIA ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है और उनके अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, हम उसकी ना सिर्फ मजम्मत करते हैं, हम आइनी और कानूनी रास्ता तो इख्तियार करेंगे, लेकिन इस एहतजाज का दायरा कार भी बढ़ेगा, क्योंकि अब बहुत हो चुका। पहले तो माशी तौर पर आपने हमें तबाह करने की कोशिश की मालकान के साथ मिलकर। ये हुकूमत और मालकान का प्रोपेगेंडा था, गठजोड़ था कि आपने लोगों को मुलाजमतों से बेदखल किया, जबरी बेतरफ किया। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। माशी कत्ल के बाद अब आप हमें वैसे कत्ल करना चाहते हैं। तशद्दुद की कार्रवाइयाँ आपके सामने हैं। हुकूमत ने अगर इन तमाम वाक़यात पर कोई रास्त इक़दाम ना किया तो यकीनन हमारी जो क़यादत यहाँ पर मौजूद है, तो ये दायरा कार एहतजाज का मुल्क भर में भी जाएगा और हम मज़ीद शिद्दत से, मज़ीद जज्बे के साथ, मज़ीद ज़ोर के साथ हम ये एहतजाज करेंगे। आप तमाम साथियों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अनवर रज़ा साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत और मालकान का गठजोड़ यहाँ है, सब दोस्तों को पता है। हमारे साथी इधर अभी मौजूद हैं जिनको जियो से निकाल दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने एक शेख रशीद को क्वेश्चन किया था। ये और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरियों से फारिग किया गया है, मुआशी तौर पर सहाफ़ियों को कमज़ोर किया गया है। अब मैं दरख्वास्त करूँगा पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साबिक़ सदर जनाब अफजल भट्ट साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अफजल भट्ट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं PFJ के सेक्रेटरी जनरल और अपने कायद नासिर ज़ैदी साहब समेत पूरी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हंगामी कॉल दी और PFJ की कॉल पर इसी तरह प्रेस फ्रीडम का परचम उठाने वाले लोग खैबर से कराची तक आज एहतजाज कर रहे हैं। अजीज साथियों, ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि इस शहर में जिस तवातर के साथ जर्नलिस्टों पर अटैक किए जा रहे हैं, उनका अगवा किया जा रहा है, उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि RIUJ को चाहिए कि PFJ से अप्रूवल लेकर फौरी तौर पर यहाँ तहरीक का आगाज होना चाहिए, क्योंकि असद तूर हमारे सामने खड़ा है। इसके वाक़या को 2 माह गुजर गए। शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ लहरा लहरा कर कहते रहे कि एक दिन के बाद मुलजम गिरफ्तार किया जाएगा। फिर बताया गया कि हम मुलजम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, जल्दी उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उसको 2 माह गुजर गए, आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। और इसके साथ साथ वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी मिसाल दी थी मीर साहब ने नदीम मलिक की कि उसको किस तरह हरासा किया गया। अभी इन्होंने मिसाल दी थी हमारे जनाह के एडिटर
मोहसिन बेग साहब की कि उनको किस तरह हरासा किया गया। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये इसी तरह अरशाद कुरैशी हमारे साथ खड़ा है, उसको उस अदारे से फारिग किया गया जिस अदारे का ये दावा है कि वो सबसे ज्यादा कानून पर अमल दरामद करता है। ना इसको नोटिस दिया गया, ना इससे वजह पूछी गई। ये शाम तक एक दफ्तर में काम कर रहा था, दूसरे दिन इसको परवाना थमा दिया गया कि आपकी खिदमत की हमें जरूरत नहीं है, बल्कि वो भी नहीं पकड़ाया गया, जुबानी जवाब दे दिया गया। इससे बड़ी ना किसी जर्नलिस्ट की तौहीन हो सकती है, ना किसी रिपोर्टर की तौहीन हो सकती है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि बड़े हामिद मीर साहब हमें कहते रहे कि मेरे लिए आप लोगों को तकलीफ ना दें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब बहुत हो चुका, हमने इंतजार कर लिया। अब RIUJ को PFUJ की अप्रूवल के साथ फौरी तौर पर निकलना होगा। बजाय PFUJ अपने कॉल के मुताबिक कोयटा से चलेगी, लेकिन हम RIUJ के प्लेटफॉर्म से अपनी एक लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट को लेकर हुकूमत के पास जाएं कि ये बताएं कि सत्तूर पर हमला करने वाले किधर हैं, ये बताएं अबसार आलम पर हमला करने वाले लोग किधर हैं, ये बताएं मतीउल्लाह जान पर अटैक करने वाले किधर हैं, ये बताएं नदीम मलिक को धमकियां देने वाले किधर हैं, ये बताएं आमिर मीर के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले किधर हैं, ये बताएं इमरान शफकत के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करने वाले किधर हैं। एक लिस्ट बनाई जाए, उस लिस्ट के मुताबिक हुकूमत को एक डेडलाइन दे। और मेरा ख्याल ये है कि जब RIUJ अपना ये कदम नेशनल प्रेस क्लब से निकाल कर पार्लियामेंट हाउस की जानब जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के तालिब इल्म, आज़ादी सहाफत पर यकीन रखने वाले सियासी कारकुन, तमाम लोग इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह हमारे साथ होंगे। जिस तरह आपने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ प्रेस फ्रीडम की मूवमेंट चली थी, जिस तरह PFUJ ने वो कॉल दी और RIUJ ने उसमें हरावल दस्ते का किरदार अदा किया था, मेरा ख्याल है कि अब हालात उससे भी बदतर होते जा रहे हैं। अब हालात का तकाजा ये है कि ठीक है कोविड की सिचुएशन बहुत खराब है, कोरोना फैल रहा है, लेकिन हम जिंदा रहेंगे तो बीमार होंगे। अगर हमारे दोस्तों की जिंदगियों से इसी तरह खेला जाता रहा, इसी तरह उन्हें हरासा किया जाता रहा, ये मकसद जो मकसद अबसार आलम को गोली मारने का था, जो मकसद असद तूर के घर में घुसकर हमला करने का था, जो मकसद हामिद मीर को किसी कसूर के बगैर जियो से ऑफ एयर करने का था, वही मकसद आज आमिर मीर और शफकत इमरान को हरासा करने का है। क्या हम जर्नलिस्ट को यह मैसेज दिया जा रहा है कि अगर आप पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम की बात करोगे, अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत की बात करोगे, अगर आप पाकिस्तान में शहरी आजादियों की बात करोगे, अगर पाकिस्तान में आप अदलिया की आजादी की बात करोगे, हामिद मीर घर बैठ सकता है, नदीम मलिक को तलब किया जा सकता है, अबसार आलम को गोली मारी जा सकती है, असद तूर के घर घुसकर उस पर तशद्दुद किया जा सकता है, तो आप किस बात की मूली है। इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें अब मजीद इंतजार नहीं करना, हमें फौरी तौर पर प्रेस फ्रीडम के अपने तमाम साथियों को तैयार करना है कि अब अगर आप घरों में बैठे रहे तो टीवी चैनल आपसे छीना जा चुका है, वहां चाइना टाइप जर्नलिज्म मुतारफ करा दिया गया है कि आप आए पेंट कोट पहनकर 6 से 10 बजे तक बैठकर प्रोग्राम करें। अगर आप इंसानी हकूक की बात नहीं करते, आप प्रेस फ्रीडम की बात नहीं करते, आप मिसिंग पर्सन की बात नहीं करते, आप जमहूरियत की बात नहीं करते, आप अदलिया की आजादी की बात नहीं करते, तो आप नंबर 1 है। अगर आप ये बात करेंगे तो आप पर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, जिस तरह हामिद मीर पर दरवाजा बंद किया गया, जिस तरह तलत हुसैन पर दरवाजा बंद किया गया, जिस तरह नुसरत जावेद पर दरवाजा बंद किया गया। इसलिए कबल इसके कि जो चंद आवाजें चंद चैनल्स में बैठी हैं उन्हें भी खामोश करा दिया जाए,
हमें अपने इन साथियों की बहाली के लिए निकलना होगा। आज़ादी सहाफ़त की जंग उसी अंदाज में लड़नी होगी जिस अंदाज में परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ लड़ी थी, उसी अंदाज में लड़नी होगी जिस अंदाज में जनरल ज़िया के खिलाफ लड़ेगी। तारीख गवाह है, किताबों में लिखा है कि वो डिक्टेटर चले गए और PFJ फातह करार पाई। और इंशाअल्लाह ताला जब ये जंग RIJ शुरू करेगी, PFJ शुरू करेगी, तो फातह यही होगी। कोई डिक्टेटर कभी तारीख में फातह के तौर पर सामने नहीं आता। मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब RIJ कॉल देगी तो तमाम साथी उस कॉल पर लब्बैक कहते हुए, अगर वो पार्लियामेंट हाउस के सामने बुलाएंगे तो आप यहाँ वहाँ पहुँचेंगे। एक दिन का कैंप लगाएं, 2 दिन का लगाएं, 1 हफ्ते का लगाएं, तो हम वहाँ बैठेंगे, क्योंकि हुक्मरान अंदाजा कर रहे हैं कि शायद ये कोविड से डरे हुए हैं। शायद जो बेरोजगारी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जर्नलिस्टों के घरों तक पहुंचाई गई थी, अब ये उससे खौफजदा है। शायद को बड़ी मुंह चलने के लिए नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि RIJ इंशाअल्लाह ताला जल्दी ऐसा पैगाम देगी कि हुकूमत को अंदाजा हो जाएगा। वो कुव्वतें जो समझती थी कि शायद आज़ादी सहाफ़त के बाद पाकिस्तान में बहुत कमज़ोर हो चुकी है, जमहूरियत के बाद दब चुकी है, उन्होंने बहुत सी सियासी जमातों को मैनेज कर लिया है, जर्नलिस्ट खामोश हो जाएंगे। अब मेरा ख्याल है वो वक्त गुजर गया है और इंशाअल्लाह ताला जल्दी RIJ ऐसी कॉल देगी कि हम अपनी छीनी हुई आज़ादियाँ दोबारा हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। इंशाअल्लाह ताला PFUJ के हुक्म के मुताबिक, उनकी अप्रूवल के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला एहतजाज की कॉल दी जाएगी। अब मैं दरख्वास्त करूँगा RIJ के सदर जनाब आमिर सजाद सैयद साहब से कि वो आएँ और अपनी ख्यालत का इजहार करें। आमिर सजाद सैयद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि RIJ ने अपनी कम्युनिटी के लिए हमेशा स्टैंड लिया। इससे पहले हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की उन मानकान के खिलाफ जिन्होंने तनख्वाहें रोकी। एक बार फिर मैं अफजल भट्ट साहब की बात को दोहराता हूं और जियो की इंतज़ामिया से मुतालबा करता हूं कि हामिद मीर साहब को फौरन बहाल किया जाए। उनका जो टॉक शो है उसको लाइव दिखाया जाए। इरशाद कुरैशी साहब, एक सवाल पर इन्हें निकाल दिया गया। मैं उस वजीर से भी पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा सवाल था जिसका तुम जवाब नहीं दे सकते थे और तुमने जियो की इंतजामिया को ये थ्रेट किया कि पिंडी के रिपोर्टर इरशाद कुरैशी को निकाल दिया जाए। ये हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मुतालबा करता हूं जियो की इंतजामिया को, इरशाद कुरैशी का जो सवाल था, क्या ये गलत था, क्या ये किसी इदारे के खिलाफ था? अगर शेख रशीद साहब को चेहरा दिखाया गया तो उसका काम था कि उनको जवाब देना। RIJ हमेशा अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी। हम आमिर मीर साहब के साथ भी खड़े हैं, इमरान शफकत साहब के साथ भी खड़े हैं और FIA को बार बार ये दोहराना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई सबूत हो तो वो लाजमी दिया करें। खवातीन के इशू बनाकर हमारे सीनियर जर्नलिस्टों की तौहीन हम किसी सूरत हम अपने किसी सीनियर की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बार बार, इससे पहले नदीम मलिक साहब के साथ भी एक सीनियर साथी हमारे, उनके ऊपर भी इसी तरह FIA ने उनको बुलाया। पहले मुख्तलिफ इदारों को डराने धमकाने के लिए बुलाया जाता था, अब वही सूरत हाल FIA उसको कंट्रोल कर रही है। मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह आज आपके पास फौजी गाड़ियां मौजूद हैं, 2007 का एक बार फिर दोहराने वाला है। और जब तक हमारी कम्युनिटी में इत्तेहाद नहीं होगा, जब तक हमारे साथी एक इत्तेहाद अपना बरकरार नहीं रखेंगे, तब तक हम लोग ये जंग जीत नहीं सकते। और अब हमें ये जंग लड़ने के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम जान भी देंगे। अपनी कम्युनिटी के साथ हम हर हालत में खड़े हैं। इंशाल्लाह अभी हम इसके बाद
एक इजलास रखेंगे और इसमें अगला अमल करेंगे कि क्या हमें जियो की तरफ जाना है, क्या हमें पार्लियामेंट जाना है, क्या वजीर आजम हाउस जाना है, या उस घर में जाना है जहां से हमें धमकियां मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत आला जनाब आमर सजाद सैयद साहब, इंशाल्लाह ताला हम ये कोशिश करते रहेंगे और अपने साथियों का जो हक है वो लेकर रहेंगे, उन पर होने वाले जुल्म जातियों का हिसाब लेकर रहेंगे। अब मैं दरख्वास्त करूंगा फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनाब सेक्रेटरी जनरल साहब नासिर जैदी साहब से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। नासिर जैदी साहब। हामिद मीर साहब, जुल्म के ज़ाब्ते, जुल्म के ज़ाब्ते, आजादी है सहाफत पे हमला नामंजूर, आजादी है सहाफत पे हमला नामंजूर, हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते। नासिर जैदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अफजल भट्ट कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आमिर सजाद कदम बढ़ाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, हामिद मीर साहब ने, अफजल भट्ट साहब ने बड़ी तफसील से आज की सूरत हाल पर रोशनी डाली है और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें अपनी सर्वाइवल के लिए अमली कदम जो है वो उठाना है। हम कब तक सेंसरशिप और अपने साथियों की ज़बान बंद करने के लिए जो ऑनस्लॉट है रियासती अदारों का और फाशिस्ट हुकूमत का, उसको हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? अब बहुत हो गया। मीडिया बहरान जो है वो अपने तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है कि अब तो ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि सेंसरशिप। अगर हामिद मीर नहीं है टीवी के ऊपर तो ये तो चलती फिरती सेंसरशिप नजर आ रही है। और इसी तरह आप देख लीजिए जितने भी लोगों को ऑफ एयर किया गया है, उनको ऑफ एयर करने से नुकसान अदारे का हुआ है, लेकिन वो लोग जो ऑफ एयर हुए हैं उनकी वो खल्क की आवाज़ है, ज़बान खल्क है। लोग उनको ज़्यादा सुनते हैं, लोग उनके प्रोग्राम्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं। तो तुम अगर पाकिस्तान में हामिद मीर की आवाज़ को बंद करोगे तो पूरी दुनिया में हामिद मीर की आवाज़ जो है वो गूंज रही है, एक ताकत के साथ मौजूद है। इसी तरह जितने भी दोस्तों को की आवाज़ों को बंद किया गया है उनकी तवाना आवाज़ें बनी हैं, लोग सुनते हैं, दुनिया उनकी बात पे ध्यान देती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमें मीडिया मालिकान को भी वार्निंग देनी है कि अब बहुत हो गया। हमने हमेशा जब भी ऑनस्लॉट हुआ मीडिया के ऊपर हुकूमती, हमने तुम्हें सपोर्ट किया, हम तुम्हारे हम कदम रहे। अभी जियो और जंग के साथ जो कुछ हुआ, हमने 8 माह जियो और जंग के बाहर जदोजहद की। ये हमारी जदोजहद थी जिसकी वजह से जंग और जियो का ऑनस्लॉट जो है वो कम हुआ। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। मुझे अफसोस है कि इरशाद कुरैशी को जिस तरह से निकाला गया है ये इंतहाई काबिल मजम्मत हरकत है, और हम चाहेंगे कि जियो की इंतजामिया होश के नाखून ले और फौरी तौर पे इश्तियाक कुरैशी को जो है वो बहाल करे। इरशाद कुरैशी को बहाल करे। अगर वो बहाल नहीं करती तो फिर हम RIUJ जो है इस पर स्टैंड लेगी,
PFUJ इस पर स्टैंड लेगी। दूसरी बात ये है कि इंशाअल्लाह सितंबर के पहले हफ्ते में PFUJ की FEC यहाँ इस्लामाबाद में हो रही है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम इन डिटेल डेलिब्रेशंस करेंगे और एक्शन प्लान जो है वो देंगे, क्योंकि हमने चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो दिया हुआ है। 19 नकात है चार्टर ऑफ डिमांड के। उसमें पहला नुक्ता प्रेस फ्रीडम का है, उसमें पहला नुक्ता आज़ादी इजहार का है। तो हम सितंबर के पहले हफ्ते में जो है वो, मेरा ख्याल ये है कि अब हमें देर नहीं करनी, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करना है तहरीक के लिए। जैसा अफजल भट्ट साहब ने कहा कि अब हमें तहरीक चलानी है। RIUJ को प्लान करना चाहिए कि किस तरह से हमने जो है वो उन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ लड़ना है जिन क़ुव्वतों ने हमें मुक़य्यद किया हुआ है, हमारी आवाज़ों को दबाया हुआ, हमारे दोस्तों को बेरोज़गार किया। हम जद्दोजहद का रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे और ये सबको पता है कि PFUJ जब तय कर लेती है कि हमने हमारे अहदाफ ये हैं, इन अहदाफ के हसूल के लिए हमने कुर्बानी देनी है, तो हमने हमेशा डिक्टेटर्स के सामने भी चैलेंज किया है और डिक्टेटरों को भी हमने दिखाया है। तारीख में हमें लोग याद करते हैं, हमारी तहरीक को लोग याद करते हैं। डिक्टेटर्स का नाम हमेशा स्याह और काले करतूत के तौर पे उनका नाम लिया जाता है। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह हम अब ये जो FIA ने हरकत की है कि आमिर मीर और शफकत इमरान को जिस तरह से जो हरकत हुई है, ये इंतहाई काबिल मजम्मत है कि 8 घंटे पहले आप सुबह रात को गिरफ्तार करते हैं, 10 घंटे तक कुछ पता नहीं कि क्या केस है। फिर आप एकदम एक फिक्टिशियस जल्दबाजी में एक FIR काटते हैं और इस किस्म के इल्जामात लगाते हैं जिनका फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। हम समझते हैं कि इस तरह के हथकंडे पहले भी हुकूमतें करती रही हैं और हमने उनका मुकाबला किया है। हम मजम्मत करते हैं FIA के इक़दाम की और हम कहते हैं कि केसेस जो है वो ख़त्म होने चाहिए। इस किस्म के केसेस जो है वो हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। तो बाकी आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पर जमा हुए और अपना एहतजाज जो है वो आपने रिकॉर्ड कर। बहुत शुक्रिया। अब अरशाद कुरैशी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इनसे दरख्वास्त करूँगा। जी, यहाँ पर मेरे सीनियर्स मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में बहुत कहना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि लास्ट मुजाहरे में भी यहाँ पर मौजूद था जब हामिद मीर साहब को ऑफ एयर किया गया। तो जब हामिद मीर साहब ने कहा ना कि अब मैं थोड़ा थोड़ा सच बोलना शुरू करूँगा, तो जब उन्होंने सच का लफ्ज़ कहा तो मैं समझ गया था कि अब कुछ होने वाला है। फिर उनको ऑफ एयर कर दिया गया। तो कहना यह है कि सच के लफ्ज़ से आपकी टांगें इतनी क्यों कांपती हैं? ऐसी कौन सी गलतियां आपने कर ली कि हम सब एहतसाब के लिए सामने खड़े, आप एहतसाब के लिए सामने नहीं आते? और एक साहब है शेख साहब, उनके लिए भी ये कहूँगा कि जो आप कहते हैं ना शमशमा दमदमा तन तना, ये ना किसी का रहा है ना आप पर रहेगा। वो इसलिए कि जो किसी के कंधों पर बैठ कर इक़्तिदार की सीढ़ियाँ चढ़ता है वो वापस बाइज्जत नहीं आता, लुढ़कता हुआ वापस आता है। बहुत शुक्रिया। आपने सवाल क्या किया था? मेरे शेख ऋषि साहब से सवाल किया था कि एटमी धमाकों के रोज़ वो मुल्क से क्यों भागे थे, क्या वजह थी? उस पर उनको सीखा हुआ और उन्होंने कहा जी कि आपको मैं ये और वो सब कुछ उन्होंने वहाँ पर धमकी दी। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का कि तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच जी।